On September 7th night and early morning of 8th, we are going to witness a long total lunar eclipse. Lunar eclipse occurs when Sun, Moon and Earth comes in a straight line, and Sun and Moon are two sides apart, and the shadow of Earth falls on the Moon. So this happens only during a full moon day. So lunar eclipse can occur only on full moon day, and on that day we will see a blood red moon. The lunar eclipse will start from 9:57, and the shadow of moon will move. The shadow of Earth will move on the moon, and it will proceed completely cover moon at around 11 p.m. On 7th, and it will continue up to 12:22 on 8th morning. So it will be about 1.5 hours, 1 hour 22 minutes. And during that period, the moon will turn red, blood moon or red color in color. This is because the light passing through the Earth's atmosphere gets scattered. Only red light passes through the moon's atmosphere and falls on the moon. So the property of light is to disperse in the Earth atmosphere. So that is why we got a red blood moon, and this is a long duration eclipse, we can say. Normally a lunar eclipse can occur from 1 minute to 1 hour 47 minutes. So it is the long eclipse, about 1 hour and 22 minutes. It can be seen from all the places of Orissa, India, and around 60% of the world population can see this thing occurring. And a very beautiful event. If the sky remains cloudless, anyone can see with their naked eye this beautiful phenomena. Particularly students and teachers should see this phenomena and know more about lunar eclipses. Normally lunar eclipses occurs every year. If we go to this century, there will be around 224 lunar eclipses. So at least 2 lunar eclipses every year. There are few years, like 4 to 5 years, when there will be no lunar eclipse. And the next lunar eclipse will be in 2026 March. And last one was lunar eclipse was also in 2025 March. So the myth going around that lunar eclipses are very rare is not actually true. And lunar eclipse occurs every year. So at least 1 or 2 eclipse occurs. So this phenomena should be observed, and scientifically it should be investigated, and what it gives message should be passed on to the student and teachers. लूनर इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण, ये आज का जो ग्रहण होने जा रहा है, ये टोटल लूनर इक्लिप्स है, पूर्ण चंद्र ग्रहण है। यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर पूरी नहीं पड़ती, उसको रोक लेती है, और वो तो ऐसी स्थिति को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा से काफी बड़ी, 4 गुना बड़ी है तो उसका जो ड्यूरेशन होता है वो ज्यादा भी होता है और काफी क्षेत्र में देखा जाता है। यानी पूरे हिंदुस्तान में तो देखा ही जाएगा, साथ में हमारे कई कंट्रीज में भी देखा जाएगा, है पाकिस्तान है और इधर आपके चाइना वगैरह, मैंने काफी बड़े क्षेत्र में इसको हम देख सकते हैं। भारत में यहाँ दिल्ली में ये 8:58 पर पेनम्ब्रल यानी उपछाया चंद्र ग्रहण शुरू होगा, और इसकी जो पूर्ण सूर्य ग्रहण 1 बजे रात को लगभग पूर्ण सूर्य पार्शियल इक्लिप्स 21 यानी 9:57 पर पार्शियल इक्लिप्स शुरू होगा। ये आंशिक होगा जाकर के, जबकि वो छाया उससे पहले शुरू हो जाएगा, 8:58 पर शुरू हो जाएगा। इसकी जो पूर्णता यानी पूर्ण स्टेज जो होगी चंद्र ग्रहण का, ये 11:48 पर होगा, और ये काफी लंबा होगा, लगभग 48 मिनट इसकी लंबाई होगी, बल्कि उससे भी थोड़ी सी ज्यादा ही होगी। और ये इसकी फुल टोटल इक्लिप्स पूर्ण चंद्र ग्रहण की एंड होगा जाकर के, वो होगा 12:22 पर। तो इस तरह से 11:48 से और 12:22 तक इस बीच में ये
लगभग 44 या 44 मिनट पूर्ण रहेगा। यानी काफी लोग देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। इसमें किसी आंखों की कोई क्षति नहीं है, कोई नुकसान नहीं है और डरने की कोई बात नहीं है। कोई प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है। खा भी सकते हैं, जैसे बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि इसमें कीड़े हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सारी भ्रांतियां हटा दें। क्या कहना? देखिए, चंद्र ग्रहण आज है, यह 9:57 पे चंद्र ग्रहण लग रहा है और 1:27 तक रहेगा। चंद्र ग्रहण में 9 घंटा पूर्व सूतक लगता है, 12:57 पे सूतक लग रहा है। सूतक से पूर्व ही सभी मंदिरों का कपाट बंद हो जाता है और यह चंद्र ग्रहण जो है यह इस साल का सबसे बड़ा ग्रहण है। इसको लेकर के ऋग्वेद के प्रारंभ में ही संकेत किया गया है और ज्योतिष शास्त्र के उद्भट विद्वान बराहमीर जी ने बृहद संहिता में इसका उल्लेख किया है। जब सूर्य और चंद्र पृथ्वी एक सीध में होता है, पृथ्वी की छाया से जब यह चंद्र ढक जाता है तो पूर्ण जो है चंद्र ग्रहण लगता है। इस चंद्र ग्रहण जो है अग्निमंडल में लग रहा है, जिसके नाते इस बार जो है अग्निमंडल में लगने के नाते सामाजिक जो है मतभेद रहेगा, युद्ध जैसा जो है कलह पैदा होगा और कुछ दलहन ऐसे चीज़ों पे महंगाइयाँ बने रहेगी। 4 जो है राशि के जातक के लिए लाभ है। मेष, वृष, धनु और कन्या की राशि के जातक के लिए लाभ और सुखप्रद है और 8 ऐसे राशि के जातक हैं, मिथुन, कर्क, सिंह, वृश्चिक, तुला, धनु, मकर और कुंभ राशि के जातक के लिए यह इसका अच्छा प्रभाव नहीं रहेगा। उनको कष्टप्रद रहेगा, किसी को घात रहेगा, किसी को स्वास्थ्य संबंधित पीड़ा रहेगी। ये मिलाकर के जो है पश्चिम पठार देशों में भूकंप इत्यादि की स्थिति बनी रहेगी, दलहन की महंगाई रहेगी, दूध दही में कमी आएगा और युद्ध जैसा जो है बना रहेगा। ये ग्रहण जो है कुल मिलाकर के जो है सामाजिक मतभेद, युद्ध इत्यादि पर इसका बहुत बुरा प्रभाव रहेगा। विशेष करके मैं निवेदन करूंगा, जो माताएं गर्भवती हैं उनको 12:57 के पूर्व ही अपना भोजन ले लेना चाहिए। 12:57 के बाद ग्रहण काल और सूतक काल में उन्हें भोजन नहीं करना चाहिए, जिससे बच्चे के ऊपर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। और सभी को मंत्र का जाप करना चाहिए। कोई शुभ कर्म जो है प्रारंभ नहीं होता है और भगवान का भजन भाव करने से इस ग्रह की दशा का जो है प्रभाव कम हो जाता है। विशेष करके लक्ष्मी मंत्रों का जाप करना चाहिए और 9:57 में स्पर्श के वक्त भी स्नान करना चाहिए। 11:41 पर यह अपने प्रचंड रूप को धारण करेगा, उस समय मध्य स्नान होना चाहिए और 1:27 मोक्ष के समय वस्त्र धारण करके स्नान करना चाहिए और श्वेत वस्त्र का दान करना चाहिए, चावल इत्यादि का दान करना चाहिए। मंदिर में 12:30 बजे सभी मठ मंदिर का कपाट बंद हो जाएगा और पुनः 8 तारीख को दर्शन होगा। 8 तारीख को ही पूजा अर्चन होगा, विधिवत भगवान का जो है पंचामृत से पंचगव्य से स्नान होगा, उसके बाद पूजन होगी, फिर मंगला श्रृंगार आरती का दर्शन होगा, क्योंकि सूतक काल में मठ मंदिर बंद रहते हैं।